Welcome to Standard 8, subject Information Technology, lesson number 4. The name of lesson is Internet Email. Students, in last online lecture, we learned how to send and receive email to each other. Today we are going to learn the next concept of email, that is email security. Email and their attachments can spread viruses. You must have a good antivirus software installed and running. The program should be set to scan both incoming and outgoing messages. Students, when we are logging to our email account, then suddenly some virus can spread. Or when we send or receive email, along with that some virus can enter in our system. So for that we have to run or install an antivirus system which removes the viruses or to stop viruses to enter in our system. The antivirus software will flash a warning if you happen to open an infected file attachment. Let the software try to remove the virus. Otherwise, delete the file before opening it. अगर जब हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को स्कैन करने के लिए बताते हैं तब वो वार्निंग डिस्प्ले करता है. अगर कोई वायरस हमारे कंप्यूटर में एंटर होता है तो वार्निंग फ्लैश करता है कि दिस टाइप ऑफ वायरस शुड बी एंटर इन योर सिस्टम. So at that time we can take action to repair that virus or directly to delete that particular file or email. For webmail, use a portal that provides virus scanning of all messages. Another concern is the privacy of email messages. Companies and police often snoop on suspicious emails. Then there are hackers who can intercept your emails and misuse the information. अभी हमें हमारा जो ईमेल का पासवर्ड है और ईमेल जो आईडी है वो भी हमेशा हमें लॉगिन करने के बाद और जब हमारा काम होता है तो हमें प्रॉपर्ली उसको लॉग आउट करना चाहिए. अगर हम कोई बाहर जगह पर साइबर कैफे में जाते हैं जहाँ पर हम हमारा अकाउंट लॉगिन तो करते हैं लेकिन लॉग आउट करना भूल जाते हैं, साइन आउट करना भूल जाते हैं, सडनली जो ब्राउजर की विंडो है वो क्लोज करते हैं, तब हमारे बाद में जो आने वाला पर्सन है वो हमारे ईमेल आईडी का मिसयूज कर सकता है. So don't do that. Hence, you should not write about any sensitive information about the company you are working with, nor your personal information, that is date of birth, bank account number, etc. in email messages. आपको कभी भी ईमेल मैसेज के जो आप सेंड करते हैं उसमें ज़्यादा करके आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने शेयर नहीं करनी है. See, this picture shows and email security. Okay, how to safeguard your password. Let us study the advantages of email. ईमेल से होने वाले लाभ और ईमेल का इस्तेमाल करके होने वाले लाभ. Advantages of email. Emails became popular right from the beginning of networking on the internet because of the following advantages. First one, it is offered as a free service at many websites. ईमेल जो सर्विस है हमें बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जैसे कि www.gmail.com, www.yahoomail.com, again www.rediffmail.com, amazon.com, like that. Second, it is the fastest mail service. The recipient receives the message along with file attachments within a few seconds. ईमेल सर्विस जो है बहुत ही फास्ट सर्विस है. टेक एन एग्जाम्पल, इसके पहले हम किसी को मैसेज भेजते थे तो हम पोस्ट कार्ड से भेजते थे. पोस्ट कार्ड को एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर होने के लिए डिपेंड्स ऑन द प्लेस, हमें किस जगह पर वो भेजना है उसके ऊपर टाइम और डेज डिपेंड्स होते थे, कितने दिन के बाद उनको मिलने वाला है. देन उसके बाद हमारे पास टेलीफोन आया, देन उसके बाद हमारे पास मोबाइल फोन आया, अभी मोबाइल फोन के साथ हमारे पास आया है ईमेल. तो ईमेल हम अगर किसी को भी भेजते हैं तो जब हम यहाँ से सेंड बटन पर क्लिक करते हैं, सडनली वो ईमेल जिसको हमने भेजा है उनके इनबॉक्स में वहां पर प्रेजेंट होता है, मतलब उनको मिलता है. और उसी साथ
फाइल जो हमने अटैच की है जैसे डॉक्यूमेंट से, इमेजेस से, वीडियोज है, सॉन्ग से, वो भी उनको सडनली मिलते हैं। थर्ड, इट इज द चीपेस्ट मेल सर्विस। ये सबसे सस्ती वाली सर्विस है। यू ओनली हैव टू पे फॉर द इंटरनेट एक्सेस। ईमेल सर्विस के लिए और ईमेल सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं भरने हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो भी इंटरनेट का बिल है, जो भी आपने इंटरनेट का रिचार्ज किया है, उसके लिए ही पैसे आपको पेड करने हैं। ईमेल सर्विस के लिए सेपरेटली पैसे पेड नहीं करने। सो दैट इज द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। Fourth one, formatted word processor documents, spreadsheets, photographs, music files and videos can be sent as attachment to email messages। जैसे मैंने अभी बताया, आप क्या क्या उसके साथ मेल के साथ अटैच कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, फोटोग्राफ, म्यूजिक फाइल्स, वीडियोस कैन बी सेंट एज अ अटैचमेंट टू योर ईमेल मैसेजेस। फिफ्थ वन, रिसीव्ड ईमेल्स आर स्टोर्ड और सेव्ड इन योर मेल बॉक्स। जो भी मेल आपको रिसीव हुए हैं आपके ईमेल आईडी के ऊपर, वो आपके कहां पर दिखेंगे, इनबॉक्स में दिखेंगे और मेल बॉक्स में आपको दिखेंगे। मैसेजेस दैट यू डू नॉट नीड इन फ्यूचर कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द मेल बॉक्स। अगर आपको लगता है कि ये जो मैसेज अभी आपको किसी ने भेजा है वो आपको फ्यूचर में उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। You can selectively reply or forward any of the messages। आप जो भी मैसेज आपको आया है उसको आप वहां पर रिप्लाई भी भेज सकते हैं, रिप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करके, या फॉरवर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करके आप उस मैसेज को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, दूसरे को आप सेंड कर सकते हैं। 7, an email message can be sent simultaneously to many recipients। It is also one of the best advantages of using email। आप एक साथ एक ही मेल बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल हमने देखा भी है। देन ईमेल मैसेजेस कैन बी प्रिंटेड टू प्रिजर्व अ हार्ड कॉपी। ईमेल मैसेजेस आप उसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ओके, so these all are the advantages of email। Just look at this picture। Advantages: easy to use, can be sent to multiple users at the same time। कितने भी लोगों को हम एक साथ भेज सकते हैं। Some of the disadvantages: lacks the personal touch, needs internet connection, can be hacked। Okay, let us study the disadvantages of email in detail। First one, emails may carry viruses। email वायरस भी कैरी करता है और हमारे सिस्टम में इंटर होता है। These are small programs that harm your computer system। They can read out your email address book and send themselves to a number of people around the world। Okay, second one, many people send unwanted emails to others। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो ईमेल की कोई जरूरत नहीं है, अनवांटेड ईमेल से वो भी एक दूसरे को सेंड करते रहते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, लाइक दैट। These are called spam mails। It takes a lot of time to filter out the unwanted emails from those that are really important। तो हमें क्या बहुत सारे बार ऐसा हो सकता है कि जो अनवांटेड ईमेल से वही ज्यादा आते हैं और हमारे जो काम के ईमेल से वो कम आते हैं, तो उसमें हमें जो अनवांटेड ईमेल्स को डिलीट करने में हमारा ज्यादा वक्त बर्बाद होता है। दैट इज आल्सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। थर्ड वन, ईमेल्स cannot really be used for official business documents। They may be lost and you cannot sign them। इसमें बताया गया है कि आप इसको ऑफिशियल बिजनेस के लिए नहीं यूज कर सकते और इसी के साथ आप इसके ऊपर आप साइन भी नहीं कर सकते। लास्ट वन, फोर्थ, योर मेल बॉक्स मे गेट फ्लडेड विथ emails after a certain time, so you have to empty it from time to time। अगर आप बहुत सारे ऑथराइज सोशल वेबसाइट्स के आप ओपन करते हैं तो हमारा जो लॉगिन आईडी होता है उनके साथ शेयर होता है, तो जो भी ऑफर्स है, फैसिलिटीज है, वो सारी कंपनियां, सोशल मीडिया हमारे पास सेंड करते हैं। तो सेंड करने के साथ ही क्या होता है कि हमारे इसमें इतने मैसेजेस बढ़ने लगते हैं ईमेल बॉक्स में कि हमें वो डिलीट करने पड़ते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन वर्क और डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। So student, this is all about email security, advantages and disadvantages of using email service।
Student, complete this given homework and send me the completed homework on my personal WhatsApp number. Thank you.